हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो हेलो। Yes, you're audible. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक्स नम्रता, थैंक्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स। Great. Okay, so a warm welcome to everyone in this software manual testing और automation testing course. This is Jain AI course में आप जहाँ पे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और जो जो आपको क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस इवन वी आर गोना एड्रेस दिस। ओके, so again I'm warm welcome to everyone in this software manual testing and automation testing course. I know that you might have a lot of questions sir about the studies, about the syllabus, about the duration, about ये वो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीजें वी आर गोना एड्रेस ओवर हियर। आई मीन टू से आई एम गोना एड्रेस ओवर हियर, नो नीड टू वरी। ओके, सो गाइस, क्या वाले? सो गाइस, टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट द कोर्स इंट्रोडक्शंस। कि कोर्स एग्जैक्टली है तो है क्या, क्या पढ़ने वाले सर? जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है, जो मार्केट को नीडेड है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले। क्या क्या हम पढ़ने वाले, क्या क्या नहीं है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर। जब भी कोई भी जॉब ओपनिंग होती है तो उस जॉब ओपनिंग के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। तो चलो गई, बिफोर मूविंग अहेड, क्या हम एक दूसरे के बारे में जान ले? हु वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और करते क्या हो इतना ही बताना है। एनीवन हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? कौन जाना चाहता है पहले? कम ऑन टेल मी। In introduction, you have to tell me your first name, last name, or what exactly are you doing? Anyone is here? Yes, yes. Can you hear me, sir? Yes, yes, please. Go ahead, go ahead. Okay. Good evening. This is Kalam. I'm from I'm basically from Bihar. Currently staying in Bangalore, HSR layout. I did my graduation in BTech from Excel Engineering College, Department of Artificial Intelligence and Data Science. And Mm-hmm. now I'm searching a job in a software testing because I have done 2 3 internship in software testing, but still I'm Mm-hmm. didn't get any permanent job, so I'm looking for the job interview. Okay, okay. Got it, got it. Okay. A warm welcome to you in this software manual testing and automation testing course, Kalam. Great. Who would like to go next, guys? और कौन जाना चाहता है? Hello, sir. Yes, go ahead. Yes, my name is Supriya Palle. Currently, I am working as a software test engineer at KPIT. And Okay, at actually, KPIT. I Mm-hmm. was yes, Mm-hmm. actually I was working as a manual test engineer. So I'm just thinking to switch my career to automation. Yes, yes, that is very important. That is really important. पढ़ेंगे, बताऊंगा गाइस में ये सारी चीजें कि क्यों आज की ड्यूरेशन में ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट है। मैनुअल टेस्टिंग क्यों इनफ नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई है, व्हाट इज द रीजन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। नो नीड टू वरी। बट अ वार्म वेलकम टू यू इन दिस सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स। सुप्रिया, चलो, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट डे? और कौन जाना चाहता है? Hello, sir. Am I audible? यस यस नम्रता, गो हेड। यू आर वेरी मच क्लियरली ऑडिबल, गो हेड। Yeah. So my name is Namrata Jadhav. Currently, I'm हम्म। working in at Prabhudas Leeladhar as assistant manager. And basically, I'm ओके। an ENTC engineer, but I was हम्म। in Satara. That's a small. My hometown is very small, so that's why there were no opportunities in IT. So I was Agree. not able to work in IT. So I started working in sales. So I just wanted to shift to IT right now. That's why I'm having Mm-hmm. this course. Very good, very good. A warm welcome to you in this software manual testing and automation testing course. नम्रता, मैं आपके डेजिग्नेशन वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा एट द लास्ट ऑफ द कोर्स। एट द लास्ट ऑफ द सेशन we will have a question and answer session. That time we will discuss in detail. No need to worry. But a warm welcome to you, Namrata. Okay, great. All right, sir. Who would Thank like you. to? Thank you. Who would like to go next? और कौन जाना चाहता है? Great. चलो गई, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है उन्हीं का वार्म वेलकम, जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी वार्म वेलकम गई। तो चलो गई, आप जानना चाहते होंगे कि शायद हु आई एम,
राइट, जो हमें ट्रेनर जो है हमारा वो एग्जैक्टली है तो है क्या, वट एवर ट्रेनर बेसिकली वी आर हैविंग, ये एग्जैक्टली है तो है क्या, इसका एक्सपीरियंस है क्या, वर्किंग एक्सपीरियंस है क्या करता है, चलो देखते गए. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइस. My name is Ganesh Yadav. I am your trainer. If you talked about my engineering, I done my engineering in IT. I have now almost 13 plus year working experience in IT industry. Apart from it, guys, I'm working as an automation lead. If you talked about the training, I have a total 9 plus years of experience in training as well. Apart from it, guys, I'm an official member of QA and Selenium Forum all over in Asia. Apart from it, guys, I'm a corporate team person with an TTS, Capgemini, Accenture, Infosys, few companies basically I mention over here. और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट भी है वहां पे भी मैं पढ़ाता हूँ. ऑलमोस्ट अभी ये जुलाई आ जाएगा तो मुझे 10 years कंप्लीट हो जाएंगे. was 10 years and giving training to the people, not only in the institute, even in the different IT companies as well. अगर आप पैशनेट हो, इफ यू रियली पैशनेट अबाउट द ऑटोमेशन टेस्टिंग, आप गाइस मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गणेश यादव ऑटोमेशन स्टूडियो. दिस इज व्हाट गाइस माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वी हैव वेयर यू कैन एबल टू फाइंड आउट ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो, भले वो प्लेराइट हो, भले ही साइप्रेस हो, भले ही एशिया टेस्टिंग हो, भले ही यूआई ऑटोमेशन हो, भले ही जावा हो, भले ही ग्राइडल हो, मैजिक कुछ भी हो, वहां पे मतलब टेस्टिंग के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे यू कैन जस्ट फॉलो मी. यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस यहाँ पे मतलब वीकली बाय वीकली लाइक वीक में 2-3 वीडियोस आई एम गोना पोस्टेड गाइस. ओके, so this is what guys my all over introduction. Okay, so let me move ahead. You can just find out the all thing guys here, so you will get a more idea. So this is my guys official YouTube channel we have. Apart from the next, what is the next? सर तो हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा सर? जो भी कोर्स कंटेंट है, इज इट मैचेस विद आवर इंटरव्यू? क्योंकि सर फाइनली एट द लास्ट इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, नॉलेज बहुत मैटर करता है, स्किल्स बहुत मैटर करता है. क्योंकि भले ही जॉब लग जाए तो जॉब काम कैसे करेंगे, काम करने के लिए एटलीस्ट वी शुड हैव अ नॉलेज, वी शुड हैव अ स्किल्स. तो सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम बहुत जगह पे ओपनिंग देखते हैं, नौकरी पे देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं सर, तो बट वहां पे जो ओपनिंग्स होती है उस ओपनिंग के हिसाब से क्या हम पढ़ने वाले, चलो देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. तो सिलेबस में क्या क्या कवर अप करने वाले, चलो देखते हैं. बट बिफोर मूविंग टू द सिलेबस, let's talk about the ITSO services. So ITSO services is a product-based IT company we have, which is involved into the multiple areas. जैसे जिनके खुद के products है, like ITSO Scientist, People Nexus AI, Messenger, ऐसे multiple products है, Android applications, iOS applications. These are the multiple products are available of this company, guys. Okay. Now, even ITSO services is involved into the multiple area. जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गाइस, आप उनके खुद के प्रोडक्ट्स है. अपार्ट फ्रॉम इट ये आउटसोर्सिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं और ट्रेनिंग करके एरिया है, यहाँ पे भी दिस गाइस आर इन्वॉल्व. दिस इज व्हाट गाइस ऑल ओवर आई वांट टू टॉक अबाउट द ITSO सर्विसेज. ओके, तो चलो देखते हैं अबाउट द सिलेबस. जिन जिनको सिलेबस देखना है यू कैन जस्ट सिंपली, शायद आप सभी को ब्राउचर्स मिल भी गया होगा, और यू कैन फाइंड आउट द सिलेबस ओवर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ITSO सर्विसेज. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, यू कैन सी हियर फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट फाइंड आउट द ऑल सिलेबस. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यू कैन सी गाइस यू विल गेट एन ऑल सिलेबस. जिनको टेस्टिंग का टीवी नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि टेस्टिंग करते क्या है, होती क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर फ्रॉम स्क्रैच. हमें याद रखना है, हम ये सारी चीजें यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज के ड्यूरेशन में तो एआई भी पूछा जाता है, एआई के साथ भी काम किया जाता है. तो सर क्या एआई भी पढ़ने वाली है सर? एआई कितना मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है, एआई कितने जॉब के ऊपर इम्पैक्ट करता है, एआई के साथ काम करना है, बिना काम करना है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले इन डिटेल. नो नीड टू वरी. तो लेट्स टॉक अबाउट द मैनुअल टेस्टिंग. अब दो टेक्निकल बैकग्राउंड, जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिनको आईटी में करियर करना है, आई नो गाइस वेरी वेल. Since 10 plus years I'm giving training, I know very well कि सारे कैंडिडेट्स को हमारा करियर आईटी में बिल्ड करना है, क्योंकि आईटी जो सैलरी पैकेज प्रोवाइड करता है, आईटी जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आईटी जो प्रोफेशनलिज्म जो प्रोवाइड करता है, वो ऑलमोस्ट लगभग अदर सेगमेंट्स नहीं प्रोवाइड करता है. और इसलिए एवरीवन वांट टू एंटर इन आईटी इंडस्ट्री, और ये बेसिक ड्रीम होता है सबका, इसमें कोई इसलिए हर्ज नहीं है. तो चलो देखते हैं
we are going to learn about the manual testing. सबसे पहले we are going to start with the manual testing. मैनुअल टेस्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है मैनुअल टेस्टिंग, क्या उसके प्रिंसिपल्स रहेंगे, मॉडल कौन से रहेंगे, आपका स्पाइरल मॉडल क्या रहेगा, आपका अजाइल मॉडल क्या रहेगा, आपका वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, सारे मॉडल हम पढ़ेंगे. सिर्फ मॉडल नहीं, आपके टेस्टिंग के टाइप. तो सर यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल भी पढ़ने वाले हैं. तो गाइस ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना लर्न हियर फ्रॉम स्क्रैच. तो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, सारी चीजें हम यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं कि आपकी टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या रहेगी, what is the type of testing we have, what are the different type of testing we have, what is the testing, what is the ad hoc testing, what is the exploratory testing, gorilla testing, monkey testing, ये सारे टेस्टिंग के टाइम पढ़ने वाले हैं. तो ये सब थ्योरेटिकल हम पढ़ने वाले हैं. आंसर इज नो गाइस, वी आर नॉट गोना लर्न दिस थिंग थ्योरेटिकली. ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं. सर तो प्रैक्टिकली पढ़ने वाले तो सर कैसे पढ़ेंगे? वैसे तो सर हमारे आईटी इंडस्ट्री में इफ यू टॉक अबाउट सर, तो नोटपैड पे वगैरह टेक्स्ट तो कोई भी लिख लेता है, टेस्टिंग कोई भी लिख लेता है. सर हम टेस्टिंग किस तरह से करने वाले? तो गाइस हम लाइव प्रोजेक्ट प्रैक्टिस वी आर गोना परफॉर्म. जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कवर किए जाते हैं, वहां पे आपको काम करना होता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी काम करना होता है. लेट मी शो यू. मेरे एक प्रीवियस जो मॉर्निंग की एक डाइट थी, उसके लिए यू कैन सी गाइस दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट्स आई क्रिएटेड. यू कैन सी मॉर्निंग के डाइट के लिए यहाँ पे देखो, यू कैन सी गाइस the projects are created guys, here you can see, and all test cases are real. मतलब हम नॉट थ्योरेटिकल नहीं पढ़ने वाले, हम तो थ्योरेटिकल विद एन प्रैक्टिकल सारी चीजें वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं. सारे हम पढ़ने वाले इंक्लूडिंग जेन एआई का यूज करके. जैसे कि रियल प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट होती है. अब जिसको यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होगा, आपको शायद से पता होगा, राइट? आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, राइट? आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट मिली होगी, उस रिक्वायरमेंट को रीड कर करके यू हैव टू क्रिएट द टेस्ट. All things we are gonna learn here from scratch. Jira tool से टेस्ट केस कैसे क्रिएट करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, बग कैसे क्रिएट करते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, यू विल गेट एन 1 week ऑफ टाइम एज वेल. आपको 1 week में सिर्फ प्रैक्टिस करना है. वंस आई एम डन विद एन टीचिंग, जैसे लाइव प्रोजेक्ट प्रैक्टिस जैसी आपकी स्टार्ट होती है, मैंने आपको पढ़ाने के बाद यहाँ पे यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. तो ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. तो ये होने के बाद बेसिकली भी हाँ, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न. सर तो ये हो गया, तो हम टेस्टिंग क्या होती है, एसटीएलसी क्या होती है, बग क्या होती है, बग लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइव प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले. अब जैसे आपकी मैनुअल टेस्टिंग हो गई, सर व्हाट अबाउट द एसक्यूएल? सर एसक्यूएल इंपॉर्टेंट होता है गाइस. आप भले ही डेवलपर करो, डजंट मैटर, आपको एसक्यूएल पता होना ही चाहिए. बट सर एसक्यूएल डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? चलो समझते हैं. लेट मी क्विकली ओपन द पेन फॉर यू गाइस. आप वर्ल्ड का कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, हर एप्लीकेशन का होता है आपका यूआई. यूआई मतलब यूजर इंटरफेस. सर यूआई मतलब ये जो आपको देख पा रहे हो ना, जैसे दिस इज व्हाट दिस इज, ये सारा का सारा यूआई है बेसिकली. ये जो आपको यूट्यूब का जो मेरा जो ऑफिशियल चैनल दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज ऑल यूआई वी हैव. ये जीरा को जो दिखाई दे रहा है यूआई. यूआई मतलब जिसको आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, यूआई. तो हर एप्लीकेशन डेवलप होता है, उसका यूआई होता है. उस यूआई, वो जो यूआई जो होता है वो कनेक्टेड होता है. किसको कनेक्टेड होता है? आपके एपीआई को कनेक्टेड होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. और ये जो एपीआई जो होता है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ, वीडियो अपलोड करना, वीडियो लाइक करना, वीडियो डिलीट करना, ये सारे एक्शन आपके कहाँ पे स्टोर होगी गाइस? ऑल दिस एक्शन विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस. आपकी सारी एक्शन कहाँ पे स्टोर होगी गाइस? आपकी डेटाबेस में स्टोर होगी. तो इसीलिए आप हमें डेटाबेस जानना, एसक्यूएल जानना, ये बहुत जरूरी होता है. भले आप डेवलपर हो, भले ही टेस्टर हो, डजंट मैटर, आपको ये पता होना ही चाहिए, हमेशा याद रखना है. सो गाइस हम ये डेटाबेस टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे. सर एपीआई टेस्टिंग हम करने वाले आंसर इज गाइस. तो हम एपीआई हो या यूआई हो, कोई भी लेयर हो, सारी लेयर वी आर गोना लर्न फ्रॉम स्क्रैच. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस गाइस, वी आर गोना लर्न द एसक्यूएल एज वेल हियर फ्रॉम स्क्रैच हियर. जैसे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं डेटाबेस, एडवांटेजेस क्या क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट्स क्या है, आपके एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, आपके ऑर्डर बाय क्लॉज, लिस्टिंग क्लॉज, आपकी जो प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट होते हैं आपके अलग अलग,
DTL, DQL, DCL, TTL, आपकी किस तरह से सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड लोएस्ट सैलरी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम ट्रैक से पढ़ने वाले हैं, हमेशा याद रखना। तो जैसे हमारी एसक्यूएल डेटाबेस हो गई, तब हम मैनुअल टेस्टिंग के लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम यूआई पे टेस्टिंग करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी आर वैलिडेटिंग द पर्टिकुलर यूआई ओवर द डेटाबेस एज वेल, किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे हम ट्रैक कवर अप करने वाले। अब ये जैसे आपकी मैनुअल टेस्टिंग और एसक्यूएल हो जाता है विद एन लाइव प्रोजेक्ट, देन वी शिफ्टेड ओवर दी जावा। हम किसके ऊपर शिफ्ट करने वाले गए? जावा। सर तो जावा में क्या होता है सर? तो यहाँ पे सर एक बात मैं बताना भूल गया, और शायद से आपको भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या हम मैनुअल टेस्टिंग में जेन एआई, लाइक जनरेटिव एआई जो होता है, उसका यूज करने वाले हैं? क्योंकि सर हम जहां पे जाते हैं भैया वहां पे एआई का दिखाई देता है, कोई प्रोडक्ट ओपन करो, कहीं पे ट्रैवल करो, हर जगह पे एआई एआई दिखाई देता है। सर तो एआई का यूज हम करने वाले, फॉर श्योर करने वाले गए। एआई के बिना हमें काम नहीं करना है, एआई के साथ काम करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल विद एन एआई बेस्ड टेस्टिंग। हाँ, आज के ड्यूरेशन में इंटरव्यू में ये नहीं पूछा था कि एआई कैसे यूज किया जाता है, आपको ये पूछा था कि एआई क्या है, आपने कैसे यूज किया आपके प्रोजेक्ट के लिए। आपको ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ उसको प्रॉम्प्टिंग कैसे करते, कैसे नहीं करते। तो इसीलिए दैट इज व्हाट गाइस, इसीलिए आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये सारी चीजें मैटर करती है। और इसीलिए गाइस हम क्या करने वाले, एआई बेस्ड टेस्टिंग कवर अप करने वाले। सर कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बट सर एआई बेस्ड टेस्टिंग होता है, ऐसे कौन कौन से टूल आर यू गोना यूज? तो गाइस हम यूज करने वाले, आप सभी को पता होगा चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने, चैट जीपीटी वी आर गोना लर्न। उसके बाद एक और टूल हम यूज करने वाले, जेमिनी। Gemini also tool we are going to use guys. उसके बाद what is the next thing basically भैया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं what we are going to learn guys। उसके बाद हम जो कोडिंग होता है उसके लिए GitHub Copilot हम कवर अप करने वाले हैं, GitHub Copilot भी हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद द लास्ट थिंग भी यहाँ कर सर, जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी कर्सर एज वेल। तो इस तरह से मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हम ये सारे एआई टूल, एजेंटिक एआई टूल हम यूज करने वाले हैं। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में आपको कि आपने कौन सा एजेंटिक एआई टूल आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, आपने एजेंट कौन सा यूज किया है, ये सारी चीजें पूछी जाती है और ये मैंडेटरी है आज की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो दिस मेनी थिंग्स बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न। जैसे आपका हो जाएगा देन वी आर गोना लर्न अबाउट दी कोर जावा। ओके सर, ये जावा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें ऑटोमेशन करना होता है। सर ये ऑटोमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे, इसके लिए भी डेडिकेटेड पॉइंट है हमारे पास, नो नीड टू वरी। बट कोर जावा वी आर गोइंग टू लर्न। सर तो क्या हमें इनडेप्थ जावा पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर इनडेप्थ जावा अगर आपको पढ़ने की जरूरत है और वो रिक्वायरमेंट है, तो आप टेस्टर क्यों बनेंगे ना गाइस? आप सीधा ऑटोमेशन इंजीनियर बन जाओगे, सॉरी डेवलपर यू कैन बी राइट। बट सर तो कैसे पढ़ने वाला? जावा इज द वेरी बिग लैंग्वेज, जहां पे कोर जावा होता है, इन शॉर्ट बेसिक जावा होता है, एडवांस जावा होता है, अलग अलग जावा के टाइप्स होते हैं आपके, स्टैंडर्ड जावा होता है। बट इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ कोर जावा वी आर गोइंग टू लर्न, क्योंकि हमारे ऑटोमेशन के लिए उतना ही रिक्वायर्ड है, थोड़ा कोर जावा इज रिक्वायर्ड। अब मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, सर मुझे तो C++ पता ही नहीं है, सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, आई एम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, क्या सर मैं कोर जावा पढ़ सकता हूँ? ये बात हमेशा ध्यान में रखना है गाइस। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, उसका कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, सारी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आपकी सी हो या C++ हो या जावा हो, पाइथन हो, डॉटनेट हो, जावास्क्रिप्ट हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, सारी लैंग्वेज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जावा ओनली, हम क्यों अदर लैंग्वेज के साथ ऑटोमेशन नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि गाइस जावा इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द ऑटोमेशन। क्योंकि जब आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, व्हेन यू विल हैव अ रिक्वायरमेंट कि आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जब आपको डेवलप करना होता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई लैंग्वेज यूज की जाती है वो जावा। तो गाइस कोर जावा हम पढ़ने वाले, बेसिक्स ऑफ जावा से लेके डाउनलोडिंग से लेके जेवीएम जेडीके क्या होता है, आपके अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लूप्स कौन कौन से होते हैं, आपके फंडामेंटल ऑफ जावा जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, मेन मेथड, ये सारी चीजें पढ़ने वाले, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ने वाले हैं,
स्ट्रिंग क्लासेस, फाइल हैंडलिंग क्लास, और जो जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप मतलब जो कलेक्शन होता है, वो भी हम पढ़ने वाले, फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले। ये जैसे जावा हमारा पढ़ के हो गया, देन वी आर गोना लर्न अबाउट दी सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या होता है? तो दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सेलेनियम। हमेशा याद रखना है कि जब जब हमें कभी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करना होता है, सर वेब बेस्ड मतलब जिसको आप इस तरह से एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, भले आपका इट्सो का वेबसाइट हो, गूगल का हो, सॉरी यूट्यूब का हो, जीरा का हो, चैट जीपीटी हो, जिसको मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ, वेब के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसी को हम कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो भले ही आपका सेलेनियम हो, भले ही आपका प्लेरेट हो, भले ही आपका साइप्रेस हो, कोई भी टूल हो, ऑलमोस्ट लगभग सारे टूल आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑटोमेशन के लिए यूज किए जाते हैं। हमेशा याद रखना है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो गाइस हम यहाँ पे पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, हम बेसिकली हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे कवर अप करने वाले विद इन सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या होता है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, हिस्ट्री क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, फीचर्स क्या है, बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल क्या है, एक्सपाथ क्या होते हैं, लूपेस कैसे करते हैं, अलर्ट, वेट्स, ड्रॉप डाउन ऑटोमेशन, आपका कीबोर्ड बेस्ड एक्शन, माउस बेस्ड एक्शन, आपका मल्टीपल विंडो हैंडल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा हर एक टॉपिक एआई के साथ वी आर गोना कवर अप। तो पहले बिना एआई के साथ भी पढ़ेंगे और विद एआई भी हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सेलेनियम आल्सो वी आर गोना लर्न। जैसे ही हमारा सेलेनियम हो गया, देन हम पढ़ने वाले मैवेन। सर ये मैवेन क्या होता है? अब गाइस जिस तरह से आपको हमें यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए एक एक गेट टुगेदर करना होता है, गेट टुगेदर के लिए हमें गूगल मीट इज रिक्वायर्ड, राइट? हमें क्या रिक्वायर्ड है? गूगल मीट। उसी तरह से जब भी मैं कभी भी कोई भी ऑटोमेशन पे काम करता हूं, मुझे रिक्वायर्ड होता है मैवेन, जो कि आपकी अलग अलग डिपेंडेंसीज अलग अलग जगह पे उठा के दे विल बिल्ड इट एंड वी कैन क्रिएट एन प्रोजेक्ट। तो गाइस यस वी आर गोइंग टू लर्न दी मैवेन फ्रॉम स्क्रैच एज वेल। मैवेन क्या होता है? छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ी सिंपल से कोड है। तो यस हम मैवेन भी कवर अप करने वाले। अब जैसे ही मैवेन वी आर गोना लर्न अबाउट द टेस्ट इंजन। गाइस एक बात हमेशा याद रखना है कि आपका जो सेलेनियम जो होता है, टॉकिंग अबाउट दिस सेलेनियम, ये कभी भी आपको टेस्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करता। जो टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करता है। सर फ्रेमवर्क की जरूरत क्या होती है? गाइस हमें बहुत सारे रिपोर्टिंग चीजें चाहिए होती है, जो कि आपके मैनेजर के साथ, सारे अदर कलीग के साथ यू वांट टू शेयर। तो गाइस सेलेनियम कभी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम टेस्ट इंजन पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट इंजन को हम स्क्रैच पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। लिसनर्स क्या होते हैं, डाउनलोड क्या होता है, मतलब डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, पैरामीटराइजेशन कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और टेस्ट इंजन विद एन एआई, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। अब जैसे हमारा टेस्ट इंजन हो जाता है, तब हम पढ़ेंगे एपीआई टेस्टिंग। एज यू कैन सी ये मिडल लेयर हमने ये भी पढ़ लिया, ये तो पढ़नी ही वाले। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले एपीआई टेस्टिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमेशा याद रखना है जिस बंदे को यूआई टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग ये दोनों के दोनों आ गए, उसको हम कहते हैं फुल स्टैक टेस्टर। उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, फुल स्टैक टेस्टर। और जो फुल स्टैक टेस्टर है, जिसको ये दोनों चीजें पता है, ही इज अ डायमंड इन द मार्केट। हमेशा याद रखना है, ही विल बी द डायमंड इन द मार्केट। उसका जॉब लाइक प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्टेड, सिलेक्शन सिलेक्टेड, बहुत बड़े हाई चांसेस हो जाते हैं, और तो है दे विल गेट एन गुड सीटीसी पैकेज एज वेल। हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप एक नहीं दो काम एक साथ कर रहे हो। तो दिस आर द थिंग बेसिकली। तो हम एपीआई टेस्टिंग पढ़ने वाले। सर एपीआई टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? यूजुअली एपीआई टेस्टिंग वी हैव टू डू विद एन पोस्टमैन टूल। ये पोस्टमैन करके टूल होता है जहां पे हम एपीआई टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस हम एपीआई मैनुअल टेस्टिंग भी कवर करेंगे और एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कवर करेंगे। तो एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है, पोस्टमैन क्या होती है, एपीआई टेस्टिंग, वेब सर्विसेज क्या होता है, सोप प्रोटोकॉल क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, आपके डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड रेस्ट, आपके अलग अलग एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके स्टेटस कोड क्या होते हैं, और तो और एपीआई टेस्टिंग के लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारी एपीआई टेस्टिंग हो गई, देन एज आई टोल्ड यू गाइस रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले। जब भी एपीआई टेस्टिंग, एपीआई ऑटोमेशन हमें करना होता है, तो रेस्ट एश्योर्ड ये जावा बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, इसको हमें यूज करना होता है। तो रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका सेटअप कैसे करते हैं, पुट पोस्ट पैच डिलीट कैसे ऑटोमेट करते हैं, आपका कोड कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपके हैंडक्रिक मैसेज क्लासेस क्या होता है,
लॉगिंग टेक्निक क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्लासेस, रिस्पॉन्स क्लासेस, आपके स्पेसिफिकेशन बिल्डर क्लासेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यस, हम रेस्ट एश्योर्ड भी इन डिटेल पढ़ेंगे। अब ये होने के बाद अब पढ़ेंगे हम गिट। सर ये गिट क्यों रिक्वायर्ड है? कहीं जिस तरह से हमें मैनुअल टेस्टिंग के लिए, हमें जीरा टूल यूज करना होता है। सर ये जीरा टूल क्यों यूज करते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं टेस्ट केस ओपन करता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये टेस्ट केस मेरे ही कोई जो भी स्टूडेंट ने क्रिएट किया होगा। लेट मी शो यू द थिंग। अब ये किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या चीज थी। तो जब हम ये सारी चीज चेक करना होता है, वी हैव टू चेक द हिस्ट्री हियर। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, दिस इज व्हाट गाइस वन ऑफ माय स्टूडेंट, इसने पिछले वाले मंथ में ये टेस्ट क्रिएट की थी। और यहाँ पे देखो ये सारी हिस्ट्री। तो हम जीरा टूल क्यों यूज करते हैं? अब कई एक प्रोजेक्ट का हम अकेले थोड़ी ना काम करते हैं, 5-10 पीपल आर वर्किंग, मल्टीपल पीपल आर वर्किंग। अगर मल्टीपल पीपल वर्क करते तो उनका काम कैसे करेंगे? तो वो सारी चीजें ट्रैक करते हैं हम जीरा टूल के थ्रू। उसी तरह से गाइस जब भी हमें ऑटोमेशन करना होता है ना, ऑटोमेशन के लिए कंपल्सरी वी हैव टू यूज गिट। ऑटोमेशन के लिए कंपल्सरी आपको क्या यूज करना होता है? गिट वी हैव टू यूज। तो गिट एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज द गिट वी हैव? गिट दिस इज कंप्लीटली फ्री ओपन सोर्स टूल वी हैव, जिसके हेल्प से हम ऑटोमेशन की सारी चीजें वन बाय वन ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कोई भी कुछ भी करता है, एवरीथिंग विल बी ट्रैक। तो गिट क्या है? इंस्टॉलेशन लेके क्या होता है, गिटअप पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, एसएसएच की सेटअप करते हैं कैसे करते हैं, गिटअप और गिट के बीच में कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, आपकी गिट की कमांड कौन कौन सी यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब ये जैसे ही हो गया, देन वी आर गोना लर्न अबाउट दी जेनकिंस। अब जेनकिंस क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, इसको समझते हैं। ठीक है एवरीवन। अब भाई जब भी हम कभी भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग करते हैं, मैं इरेज कर लू गाइस, आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? मैं वाइंड अप कर भी इसको इरेज कर लू अभी? चलो चलो बताओ एवरीवन। हाँ हाँ सर। ओके गुड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेट मी क्विकली क्लिक ऑन द न्यू थिंग। ओके, अब गाइस हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, हम जब भी कभी भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो स्मॉल स्केल हो, भले मिड स्केल हो, भले एमएनसी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं। तो जिस तरह से आपका डेव करके एनवायरमेंट होता है, उसके बाद क्यूए के लिए एक क्यूए करके एनवायरमेंट होता है। ओके, इसको अलग अलग नाम होता है, इंट, कुछ लोग इंट बुलाते हैं, कुछ लोग स्टेज एनवायरमेंट कहते हैं, वो अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम रखा जाता है। और जो गाइस एक अनादर एनवायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोड एनवायरमेंट। मतलब गाइस कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, वहां पे होता है ना टेस्टिंग एरिया अलग होता है, ये डिपार्टमेंट अलग होता है, वो डिपार्टमेंट अलग होता है, डिजाइनिंग अलग होता है। उसी तरह से हमारा, तो उसके लिए अलग अलग एनवायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होती है। उसी तरह से आपकी आईटी कंपनीज में भी जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोई बनाया जाता है, उसके लिए अलग अलग एनवायरमेंट इज नीडेड। तो जैसे कि डेव एनवायरमेंट, अब डेवलपर तो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं कोड वगैरह तो सब कुछ इसमें, अब ये कोड यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएगा? सर ये प्रॉड एनवायरमेंट क्या होता है? प्रॉड मतलब लाइव एनवायरमेंट, जिसको आप लोग देख पा रहे हो। ये देखो, ये सारे लाइव एनवायरमेंट है जिसको आप हम सभी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लाइव एनवायरमेंट वी आर गोइंग टू कॉल इट। तो दिस इज द थिंग बेसिकली वे। तो ये डे एनवायरमेंट से क्यूए एनवायरमेंट, उसके बाद क्यूए के प्रॉड में इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं? तो गाइस इस सभी को डिप्लॉयमेंट हम करते हैं बेस्ड ऑन दी जेनकिंस। तो जेनकिंस में यूज किया जाता है फॉर CI/CD पाइपलाइन पर्पस, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो जेनकिंस क्या होता है? ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के लेके सारी चीजें वी आर गोना डू ओवर हियर। सो इंस्टॉलेशन ऑफ जेनकिंस, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनकिंस, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, हम गिटहब और जेनकिंस के साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कुकुम्बर। सर कुकुम्बर, कुकुम्बर नथिंग बट आपका बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है। ये भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी होता है। तो उसके लिए तो ऑलरेडी हम तो टेस्टिंग की कवर कर रहे हैं ना सर। तो ये बीडीडी की क्यों रिक्वायर्ड होती है? अब कहीं ये जो टेस्टिंग वाला होता है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्टर कैन वर्क, क्योंकि ये थोड़ा कोड में कुछ ज्यादा होता है। तो इसीलिए बीडीडी अप्रोच पीपल आर प्रेफरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस एनालिस्ट पीपल जो होते हैं ना,
दे कैन ऑल्सो वर्क। सर बिजनेस एनालिस्ट पीपल क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, पढ़ेंगे धीरे धीरे वन बाय वन सेशन में पढ़ेंगे कौन कौन से रोल्स होते हैं, क्या क्या हम काम करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या होता है, उनको वैसा क्यों कहा जाता है, वो क्या काम करते हैं, सारी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। तो गाइस हम कुकुम्बर हियर टू क्रैश कवर करने वाले। कुकुम्बर क्या होता है, उसकी वर्किंग सिंटैक्स क्या होता है, उसके गिवन व्हेन देन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले। फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन फाइल, रन कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे हमारा कुकुम्बर हो गया, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी प्लेराइट। प्लेराइट आज की ड्यूरेशन में, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है आज की ड्यूरेशन में, अगर आपको सच में जॉब जॉब गेट करना है, ये सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए। आप अभी भी, मैं किसी सभी को चैलेंज देता हूं, जस्ट ओपन दी एनी गूगल, टाइप देयर कि आज के ड्यूरेशन में टेस्टिंग में जॉब मिलने के लिए क्या चाहिए, आपको ये सारी जो चीजें जो होती है लिस्टेड डाउन मिलेगी। चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो, नौकरी पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आपको ये नहीं आती है, यू वोंट गेट जॉब। ओके, आपको जॉब नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखना है। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले प्ले राइट। तो प्ले राइट क्या होता है, तो स्लेम और प्ले राइट में कुछ डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट लगभग लगभग सिमिलर ही है। जैसे कि आप कोई भी गाड़ी लो, टू व्हीलर, बजाज का जो टू व्हीलर होता है उसका गेयर अलग सिस्टम होता है, कि हीरो होंडा का कुछ अलग सिस्टम होता है, आगे पीछे गेयर होता है, गेयर तो सेम ही पड़ते हैं, सिर्फ आगे पीछे का डिफरेंस होता है। उसी तरह से प्लेराइट भी हम क्रैश कवर करने वाले, क्योंकि ये अभी मार्केट की नीड है। तो प्लेराइट हम क्रैश करने वाले। जो था प्लेराइट क्या होता है, दिस इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो प्लेराइट जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, इसको भी यूज करते गए हम यूआई ऑटोमेशन के लिए। ये थोड़ा ऑप्टिमाइज अभी लेटेस्ट 3-4 साल पहले पुराना है, तो इसीलिए इसको पीपल आर प्रेफरिंग। और तो हम इसको भी पढ़ने वाले फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो यस, यू हर्ड इट राइट गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न दी प्लेराइट हियर एज फ्रॉम स्क्रैच। और जैसे हमारा प्लेराइट हो गया, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, हम पढ़ने वाले लाइव ऑटोमेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो हम सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मैनुअल टेस्टिंग पढ़ने के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग, सॉरी मैनुअल टेस्टिंग के लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्टडी करने वाले, जिस तरह से यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ द लाइव प्रोजेक्ट विल क्रिएट, उसी तरह से गाइस हम ऑटोमेशन का भी लाइव प्रोजेक्ट हम डेवलप करने वाले फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, एज पॉइंट ऑफ द करियर एज वेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, और गाइस उसके बाद यू विल हैव अ मॉक इंटरव्यू। सो दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव। सर, तो यू माइट हैव क्वेश्चन, सर यहाँ पे हम ये सारे टॉपिक के थ्रू हम एजेंटिक एआई यूज करने वाले। कौन कौन से एआई टूल हम यूज करने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वी आर गोना लर्न अबाउट द चैट जीपीटी, आपका गूगल जेमिनी, गिटहब कोपायलट एंड आपका कर्सर, ये सारे टूल्स हम पढ़ने वाले। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो गाइस द टोटल कोर्स ड्यूरेशन इज 3.5 मंथ। बट बाय द वे, किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है ओवर द सिलेबस, जो हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर है गाइस कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? सर ये मैनुअल का 2 प्रोजेक्ट के बाद में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करा सकते हैं कि? आरत, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, यहाँ पे बाकी के लोग भी होंगे, देयर इज नो जॉब आर अवेलेबल ऑन मैनुअल टेस्टिंग। आरत, देयर इज नो जॉब्स आर अवेलेबल मैनुअल के लिए अभी नहीं है सर मार्केट में। अभी नहीं, बहुत टाइम से नहीं है। करेक्ट गाइस, यहाँ पे कोई है मैनुअल टेस्टर हमारी बैच में? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर जी, हम तो जॉब कर रहे थे मैनुअल टेस्टिंग में, बट अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरा जॉब छूट गया है। वही तो, मैनुअल टेस्टिंग का जॉब लगता नहीं, और लग भी गया तो 2-4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा लगेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, नहीं क्योंकि सर, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। इसलिए क्योंकि मैं 2-4 जगह इंटरव्यू मतलब ऐसा ही किया, तो बोले नहीं ठीक है ऑटोमेशन। आरत, होल्ड ऑन, हम जो है ना सेशन के लास्ट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको सिलेबस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है? सिलेबस तो यही था सर कि मेरा तो वो था पाइथन विद ऑटोमेशन, बट शायद आप लोग के इधर है नहीं, जावा विद ऑटोमेशन है। पाइथन विद ऑटोमेशन का विच इज रियली रेयर स्कोप। प्रॉब्लम क्या होती है पाइथन विद ऑटोमेशन, इसको भी हम बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको, बट शॉर्ट में इतना ही समझना है
कि अगर आपकी 100 ओपनिंग्स होती मार्केट में, तो आउट ऑफ 100 70 ओपनिंग्स फॉर जावा विथ सेलेनियम, आपकी 70 ओपनिंग जो होती है जावा विथ सेलेनियम, और बची हुई 30 जो ओपनिंग्स होती है सिर्फ वो पाइथन विथ सेलेनियम, आपकी जो अलग अलग जो होती है जावास्क्रिप्ट सेलेनियम, बहुत रेयर स्कोप होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि पाइथन जब हम कोई डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं ना, तो वहां पे हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना बड़ा टफ हो जाता है। हमें कस्टमाइज मोबाइल एप्लीकेशन जब डेवलप करना होता है ना, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए पीपल आर प्रेफरिंग लाइक जावा लैंग्वेज, पीपल आर प्रेफरिंग, और इसीलिए ऑटोमेशन के लिए जावा विथ सेलेनियम, जावा विथ प्लेराइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग। ठीक है, ओके सर। और ये सर ओके। ये कोर्स होने के बाद में जॉब असिस्टेंट मिलता है, एट द मतलब लास्ट, वी विल डिस्कस आरत, वो लास्ट में क्वेश्चन सेशन के बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए टाइम होगा गाइस, नो नीड टू वरी। ओके, ओके ओके आई एम आस्किंग क्वेश्चंस के सिलेबस पे ऊपर है क्या आपको कुछ क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी गाइस? हेलो सर। हाँ, हेलो। जो सिलेबस शुभम। का पार्ट है सर, अभी तो मार्केट में ये चल रहा है कि प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट भी चल रहा है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट कवर करने वाले हैं क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स है कि एक तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, नहीं ये नहीं दोनों नहीं, चीजें ऐसा लगती है मार्केट में। ऐसा नहीं है शुभम, एक्चुअली दैट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ मार्केट। होता क्या है कि जो अभी सेलेनियम जो है 2008 से हम पढ़ रहे हैं, राइट, मतलब यूज कर रहे हैं। यस। अब जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सेलेनियम में है, वो कहाँ से लोग प्लेराइट में शिफ्ट करेंगे, राइट? क्योंकि कोई प्रोजेक्ट को अगर माइग्रेट करना है, शिफ्ट करना है, उसके लिए टाइम, कॉस्ट, ह्यूमन, ये सारे लगते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट शिफ्ट प्लेराइट के साथ जाते हैं ना, टाइपस्क्रिप्ट इज जस्ट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, बट आप टाइपस्क्रिप्ट शिफ्ट प्लेराइट के साथ मोबाइल ऑटोमेशन कर नहीं सकते हो। दैट इज अगेन चैलेंजिंग थिंग। जो कस्टमाइज मोबाइल ऑटोमेशन जो होता है वहां पे आप लैग करते हो, एसी ऑटोमेशन होते हैं वहां पे भी अच्छे खासे लैग करते हो। इसीलिए आज के ड्यूरेशन में भी जावा विद सेलेनियम, प्लेराइट, यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सपोजर हो जाता है। ओके, सो यू कैन जस्ट अगर आपको फिर भी इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लेराइट विद जावास्क्रिप्ट बैच, तो देयर इज अ सेपरेट ट्रेनर, देयर इज अ सेपरेट बैच फॉर दैट। ठीक है ना शुभम? ओके या ग्रेट ग्रेट। आ रहे किसी को भाई सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन में? एनीवन हैज एनी? सर मुझे तो बताया गया था कि जावा स्क्रिप्ट विद प्लेराइट पढ़ाया जाए, कवर होगा इसमें, तो आप बोल रहे हो? अरे अरे आरद, हैव यू चेक दी ब्राउजर? कभी जो एड वगैरह देखा है वहां पे मेंशन किया है वैसा? नहीं, वो तो मैंने देखा, इसीलिए मैंने कंफर्म के लिए उनको कॉल पे भी कनेक्ट किया। उन्होंने पूछा कबर रहेगा वो, तो इसके लिए मैंने नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको एड में नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपके ब्राउजर पे मेंशन नहीं, तो कहाँ से कवर करेंगे आरद, राइट ना? ओके ओके सर। ऑलराइट, एनीवन हैज एनी डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस ओवर द सिलेबस? अगर हम पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, जावा ये स्टडी करने जाएंगे ना सारी चीजें, तो हमारा क्लास खत्म ही नहीं होगा, एक डेढ़ साल तक तो क्लास ही चलेगा। सिर्फ सिलेबस के ऊपर अगर होगा शुभम, देन यू हैव टू आस्क, अदरवाइज अगर दूसरा होगा तो हम लास्ट में कवर करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन ओवर द सिलेबस? सिंपल है कि अभी क्या है कि अभी मैनुअल का पार्ट तो कंप्लीट, मतलब क्लास चालू होते आप मैनुअल का पार्ट कवर करने वाले हो डायरेक्ट ऑटोमेशन का? क्योंकि अभी नहीं, जो मैंने मोस्ट उसका ऑफ कवर करेंगे ना। मैनुअल का कवर करने का कोई स्कोप है कि डायरेक्ट हम ऑटोमेशन चालू करेंगे ऐसा? क्योंकि बेसिकली क्या है Yes, कि मैं we have a dedicated separate batch for automation as well, only automation. तो वो हाँ, only आपकी automation स्टार्ट है। होगी 12th ऑफ मई को स्टार्ट होगी। ओके 12th ऑफ मई को, ओके। ठीक है, तो Yes. हाँ, तो उसके लिए मुझे ज्वाइन करना था, क्योंकि मैं एज अ वर्किंग हूँ, तो मुझे स्पेशल ऑटोमेशन के लिए काम करना है, ऑटोमेशन के लिए हाँ, क्लास। प्लीज ज्वाइन दैट बैच एज वेल, नो वरी। ओके ग्रेट। और है किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस? ग्रेट सर, तो फिर क्लास फीचर्स क्या क्या रहेंगे? व्हाट विल बी द फीचर फॉर दिस कोर्स? तो गाइस हमारा डेली बेसिस पे 1.5 का आवर्स का सेशन रहेगा। आपके सेशन जो होंगे मंडे टू फ्राइडे सेशंस विल हैव, हमेशा याद रखना है, आपके जो सेशन जो रहेंगे मंडे टू फ्राइडे सेशन विल हैव। आपके हर एक सेशन लाइव और रिकॉर्डेड रहेगा। योर एवरी सेशन इज लाइव और रिकॉर्डिंग। आपको जो रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस रहेगा, दैट यू विल गेट एट द लाइफ टाइम। रिकॉर्डिंग का जो भी एक्सेस रहेगा आपको लाइफ टाइम रहेगा। हमारी हर दिन रिवीजन रहेगी। ऐसा नहीं कि एक वीक में एक कोई भी आधा पौन घंटा आपको दिया जाएगा। एवरी डे एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन
विल डू द रिवीजन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन एंड देन यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर. तो गाइस आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, एवरीडे रिवीजन रहेगी, आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, उसके बाद हम मैनुअल टेस्टिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर लाइव प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर भी लाइव प्रैक्टिस वी आर गोना परफॉर्म. ओके, सो दिस यू कैन सी दिस इज द पोर्टफोलियो वी हैव. हम पढ़ने वाले थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल वी आर गोना लर्न. हमारे डेली बेसिस में असेसमेंट रहेंगी, आपके एमसीक्यू से लेके जो आपको होमवर्क रहेगा वो डेली बेसिस पे रहेगा. उसके बाद आपका रिज्यूम प्रिपरेशन सेशन रहेगा. दोज पीपल फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, उनके लिए सेपरेट नॉन टेक प्रिपरेशन रहेगा. हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर लाइव प्रैक्टिस हम परफॉर्म करने वाले. You will get certificate as well. Now certificate you will get at a common ITSO services. ITSO services is not just an institute. This is a product based IT company where इसका certification आपको मिलेगा. और उसके बाद you have to attend the interview and then job placements will have. तो guys आपको जो होगा, आपको job placement also arrange once you are done with the syllabus. Once you are ready for market, we ready for interview, then we'll send you from with our जो भी हमारा जो कंपनी के साथ जो टाइप है वहां पे आपको रिस्पेक्टिवली शेयर किया जाएगा. ओके, सो दिस आर द व्हाट गाइस एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ दिस कोर्स. ओके, तो सर अगर आपको किसी को भी कोई नॉन टेक्निकल कोई क्वेश्चन है अबाउट द रिकॉर्डिंग, अबाउट द नोट्स, यस आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, कस्टमाइज नोट्स भी मिलेंगे. ओके, डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको. अगर आपको कोई भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है लाइक चीज टेक्निकल क्वेश्चन, तो प्लीज रीच आउट टू दिस नंबर. इस नंबर के साथ रीच आउट करना है. दीज गाइज आर अवेलेबल बिटवीन 10 AM टू 7 PM के बीच में अवेलेबल होता है, बिकॉज दीज आर द वर्किंग प्रोफेशनल इन ITSO सर्विसेज. मंडे टू सैटरडे दे आर वर्किंग गाइज. ओके, प्लीज रीच आउट टू दिस गाइज इन दिस गिवन टाइम ओनली. ओके, ऑलराइट. तो ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे सर ये टेस्टिंग होता है तो क्या होता है. किस किसको पता है व्हाट इज द टेस्टिंग डू वी हैव, क्या होता है टेस्टिंग? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द टेस्टिंग डू वी हैव? Yes, sir. Actually, when we are developing any project or any software, then we have to check what is the functionality is working proper or not before releasing on the market, sir. क्या बात है, गुड आंसर कलम, बहुत सही आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो कहते हैं आपके टेस्टिंग मतलब बट लेट मी गिव यू द एग्जांपल. मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और गाइस व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं यहाँ पे वैलिड यूजर नेम और यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे गाइस? क्या हमारा लॉगिन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, इनवैलिड Answer is नहीं होना चाहिए. तो इन शॉर्ट ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. तो जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के साथ वही एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट एक्चुअली हुई है, यानी जो हमारा एक्चुअल लाइव एप्लीकेशन है उसी तरह से बिहेव कर रहा है, यानी जब हमें ये वेरीफाई करना होता है दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द टेस्टिंग. तो इसीलिए टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं. तो टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज द टेस्टिंग डू वी हैव? टेस्टिंग मींस वेरीफाइंग द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट. टेस्टिंग क्या होती है, हमारा जो प्रोडक्ट की बिहेवियर है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ये दोनों चीजें मैच हो रही है, यानी जब हमें चेक करना होता है दैट इज व्हाई व्हाट गाइस हम टेस्टिंग हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं. सर ठीक है, ये तो बात ठीक है सर. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? तो नेक्स्ट थिंग सर ये टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बट सर टेस्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग? चलो कौन मुझे बताइए एग्जैक्टली टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एंड गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल. हाँ, टेस्टर सर, टेस्ट जो Tester, सॉफ्टवेयर okay. What about other people? और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गाइस हमेशा याद रखना है टेस्टिंग के लिए और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए सिर्फ टेस्टर और डेव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. हमेशा याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है. जब भी हम कोई टेस्टिंग कोई क्वालिटी ऑफ वर्क करते हैं उसके लिए सिर्फ टेस्टर और डेवलपर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. गाइज आपके कंपनी के सीईओ से लेके जो आपकी कंपनी पे जो लोएस्ट पोजीशन पे होता है इंटर्न, सीईओ से लेके इंटर्न तक सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टेस्टिंग के लिए. ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, ऑल दिस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग.
प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई क्वालिटी प्लेज अ वेरी मेजर रोल हियर। इसलिए आपकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, बेसिकली नेक्स्ट थिंग तब तो फिर कौन करता है, व्हाट इज द मैनुअल टेस्टिंग भी। आप जब जब कभी भी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करता हूं, लेट मी क्विकली शो यू गाइस, जब जब मैं कभी भी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करता हूं, देखो ना गाइस, मैंने क्या किया, ये फर्स्ट डेमो एप्लीकेशन ओपन किया, लेट मी क्विकली क्लोज इट, लेट मी क्विकली ओपन इट, लेट मी क्विकली कॉपी इट, लेट मी क्विकली कॉपी हियर एंड एड इट, एंड यू कैन सी जब जब हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं मैन्युअली विथ आवर ओन हैंड, ऐसी टेस्टिंग को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग। ऐसी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग। सो मैनुअल टेस्टिंग मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इन विच टेस्ट्स आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली विदाउट यूजिंग ऑटोमेटेड टूल। कोई भी बिना ऑटोमेटेड टूल यूज किए बिना जब भी हम कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, इसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग। सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है पढ़ेंगे, मैनुअल टेस्टिंग की क्या दिक्कत है, क्यों अभी आज की ड्यूरेशन में जॉब नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें पढ़ेंगे जो चलो में 5 मिनट होंगी। तो सर ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, लेट मी क्विकली शो यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्विकली ओपन समथिंग फॉर यू गाइस। जस्ट अ मिनट गाइस। जब जब हम कभी भी कोई भी ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कभी भी कोई भी ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं विद एन एग्जीक्यूटिंग द कोड, मतलब कोई ऑटोमेशन टूल की हेल्प लेके जब भी हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ऐसी टेस्टिंग को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग। यू कैन सी ये है हमारा यूआई टूल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका यूआरएल ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, हुआ ही नहीं हुआ गाइस, एग्री एवरीवन, and it is being closed as well. Okay, let me quickly show you that part. Just a minute guys. Okay, मैं आपको बताता हूँ, click on the login button, उसके बाद verify the home page. Okay, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, just a minute, and let me read them. जब जब हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं विद एन ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द एक्सटर्नल टूल विद एन एग्जीक्यूटिंग द कोड, ऐसी टेस्टिंग को ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। यू कैन सी जो चीज मैंने मैनुअली परफॉर्म किया वही सेम थिंग आई एम गोना परफॉर्म विद एन ऑटोमेशन। हमेशा याद रखना है, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आज की ड्यूरेशन में ऑटोमेशन कम टू द पिक्चर। सर पर एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, व्हाट इज व्हाई दिस ऑटोमेशन टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, देखते गए, लिसन केयरफुली। अब पहले होता क्या था, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, मतलब आज से लगभग लगभग 15-16 साल पहले जाता हूं। पहले क्या होता था भाई, मैनुअल टेस्टिंग ही चलता था। पहले क्या होता था, मैनुअल टेस्टिंग होता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास क्या है, एक विंडोज 10 वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मुझे टेस्ट करना है और रिलीज करना है। लिसन केयरफुली ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। हमारे पास विंडोज 10 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थी, इसको मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है और बेसिकली रिलीज करना है। तो सपोज इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 15 टेस्टर है, एग्जाम्पल लो कि 15 टेस्टर है, और 15 टेस्टर ने टेस्टिंग करने के लिए जब भी हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं ना, हमें टेस्ट केसेस क्रिएट करना होता है। टेस्ट केस क्या होती है क्या नहीं, आने वाले सेशन में समय में हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। बट सपोज इन्होंने क्या किया, 100 टेस्ट केसेस टेस्ट किया, 100 टेस्ट केसेस क्रिएट किया। अभी 100 एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज दिस गाइज आर रिक्वायर्ड 1 मंथ। ये 100 टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1 मंथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्होंने टेस्ट कर लिया, रिलीज कर दिया। अब आता है हमारा फिर से विंडोज 11 का वर्जन। तो यहाँ पे क्या है, सेम पीपल भी है, 15 लोग तो सेम ही है, 15 टेस्टर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या की, नई 150 टेस्ट केस न्यूली क्रिएट की। ये कौन सी गई, न्यू टेस्ट केस भी। आप और भाई गाइस हमारे पास टाइम तो 1 मंथ का ही है। यहाँ पे चैलेंज क्या होता है पता है, जब भी हम कभी भी नई फंक्शनलिटी के ऊपर टेस्ट करते हैं, हमें मेश्योर करना होता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। हमारी पुरानी जो फंक्शनलिटी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, टोटल 250 टेस्ट केसेस मिला। अब गाइस मुझे बताओ कि यही सेम 15 टेस्टर 250 टेस्ट केस कहां से एग्जीक्यूट करेंगे गाइस? यही सेम जो है 250 टेस्ट कहां से एग्जीक्यूट करेंगे? एक तो उनको डे नाइट करना होगा। ठीक है, हमने डे नाइट कर भी लिया,
व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रिलीज? नेक्स्ट वर्जन में क्या करेंगे? विंडोज 12 वाला वर्जन जब आएगा उसमें क्या करेंगे? तो सर हम क्या करेंगे? टाइम फ्रेम, डिलीवरी टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे। वो तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो सर फिर हम कितने सर हम हायर करेंगे? हमारे ऐसे 20 अगर वर्जन होते हैं और जब ये प्रोडक्ट मेंटेनेंस में चला जाता है तब क्या करेंगे हम? हाउ एग्जैक्टली वी आर गोना परफॉर्म? तो इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट एफिशिएंट। तो इसीलिए आपका पिक्चर में आया व्हाट गाइस? ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्या पिक्चर में आया गाइस? ऑटोमेशन। तो गाइस अगर हमने ये सारी चीजें ऑटोमेट कर ली तो जहां पे हमें 1 मंथ रिक्वायर्ड है टेस्टिंग के लिए, कोई मुझे बता सकता है कि ये ऑटोमेशन टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा? कोई मुझे बताएगा? एनीवन हैज एनी आइडिया? कोई गेस? कुछ भी होगा गलत, कोई दिक्कत नहीं। जो 50 टेस्ट केस मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कम से कम मतलब 2 महीने रिक्वायर्ड है, वही टेस्ट केस को अगर मैंने ऑटोमेट कर लिया कितना टाइम लगेगा? कितने दिन लगेंगे? विदिन 2 मिनट्स सर। नहीं, इतने 2 मिनट्स में नहीं होगा कलम। हो नो, नॉट सकता है। पॉसिबल। अरे वन नहीं डे में होगा भाई। ओके, गुड ट्राई। 1 डे इज गुड ट्राई। व्हाट वन अबाउट डे द भी पीपल? हो गया है, उससे कम में ही हो जाएगा एक्चुअली वेरी अगर गुड। हम। हाँ, वेरी गुड सुरभि, बहुत अच्छा। सुरभि ने सही आंसर दिया। तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, इस 250 टेस्ट्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो हार्डली यू नीड टू रिक्वायर्ड 3 to 4 आवर्स। इससे भी कम लग सकता है अगर आपने पैरेलल एग्जीक्यूशन वगैरह किया है तो। गाइस कहां पे आपका 1 मंथ, कहां से आपका 3 to 4 आवर्स? लुक एट द डिफरेंस गाइस, कम ऑन, लुक एट द डिफरेंस। एंड दैट इज वाई आज के ड्यूरेशन में एवरीवन वांटेड द ऑटोमेशन टेस्टिंग। जो लोग इस चीज पर फोकस करते हैं अभी भी आज के ड्यूरेशन में, आने वाले समय में ना उनकी जॉब रहेगी ना उनके पास कोई मतलब स्किल भी नहीं रहेगी। जॉब तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और अगर आप जो भी आज के ड्यूरेशन में कुछ लोग मतलब मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो पाथ पे चल रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग पाथ। तो फिर हम क्यों मैनुअल टेस्टिंग पढ़ रहे हैं? क्योंकि हेलो सर। ऑटोमेशन के लिए मैनुअल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। यस कलम। सर 100% तो मैनुअल रिमूव तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज बिना मैनुअल टेस्टिंग का हम ऑटोमेशन में तो स्विच नहीं कर सकते हैं ना। कोई भी अगर एप्लीकेशन बिल्कुल बनता है सही, तो उसके फंक्शनलिटी बिल्कुल को सही, पहले मैनुअली टेस्ट करेंगे ना, उसके बाद नहीं बिल्कुल करेक्ट, मैनुअल। तो मैनुअल बिल्कुल भी तो करेक्ट है। रिक्वायर्ड है ना। जी बट जी। सिर्फ मैनुअल नहीं ना रिक्वायर्ड कलम। यस आपकी यस मैनुअल करने के बाद यू हैव टू वर्क फॉर द ऑटोमेशन। यस यस, आप बोथ बिल्कुल आर सही हो, या। बोथ आर रिक्वायर्ड। इसीलिए तो हमारे कोर्स में दोनों की दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। जिस दिन मैनुअल टेस्टिंग बिल्कुल बंद हो जाएगा तो मैं भी मैनुअल टेस्टिंग पढ़ाना बंद कर दूंगा। ओके, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि कभी भी जब भी हमें कोई ऑटोमेशन करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हमें उस फंक्शन को मैनुअली टेस्ट करना होता है। और जैसे ही हमारी मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है वी हैव टू वर्क ऑन दी ऑटोमेशन। तो गाइस इसीलिए आज की ड्यूरेशन में मैनुअल प्लस ऑटोमेशन की रिक्वायर्ड है। तो सर इसका प्रैक्टिस क्या होता है? तो गाइस मैनुअल टेस्टिंग का अगर आपको 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, हार्डली यू विल गेट 3 to 4 LPA। बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना भी नहीं होता है। अब ये थोड़ा पैकेज जो होता है कंप्लीटली वेरी करता है। मैं फिर से समझाता हूँ, IT is a private sector. This is not a government sector. जैसे कि क्लास A, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लर्क, इसके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, इनके अलग अलग मतलब पे स्केल फिक्स होता है। IT इज नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर। इसका जो सैलरी पैकेज होता है कंप्लीटली वैरी करता है। तो लगभग मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आपकी 2 to 3 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो हार्डली आपको 3-4 बड़ी मुश्किल से मिल जाएगा LPA। पर गाइस अगर वही आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है 2-3 ईयर का, तो गाइस इजीली यू विल गेट अ CTC बिटवीन 4 LPA to 6 LPA। इसके बीच में मिल जाएगा आपको CTC। सर तो ठीक है, ये तो हो गया। अब पहले क्या होता था गाइस, अगर हम लगभग ये 2026 चल रहा है राइट, अगर हम यहाँ से 8 साल पहले जाते हैं, मतलब 2018 से पहले अगर हम जाते हैं, तो गाइस हमारी IT इंडस्ट्री में मैनुअल टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड पोजीशन होती थी और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड पोजीशन होती थी। अब ये दो अलग अलग हायरिंग होती थी। पहले जो होता था दो अलग अलग हायरिंग होती थी, मैनुअल टेस्टर्स मैनुअल टेस्टिंग करता था, ऑटोमेशन टेस्टर ऑटोमेशन टेस्टिंग करता था। यहाँ पे दिक्कत थी गाइस, बहुत बार क्या होता था मैनुअल टेस्टर ने जो
क्रिएट की है, जो टेस्टिंग की है, उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करना, वो जो टेस्ट केस लिखी है वो ऑटोमेशन इंजीनियर को समझ में नहीं आता था, और इन दोनों पोजीशन के बीच में अच्छा खासा कम्युनिकेशन गैप होता था। आईटी इंडस्ट्री इज वेरी क्लेवर इंडस्ट्री, काम टाइम पे नहीं हो पाता था। आईटी इंडस्ट्री इज वेरी क्लेवर इंडस्ट्री, उन्होंने क्या किया, ये दोनों पोजीशन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, एंड दे फॉर्म अ न्यू पोजीशन जिसका नाम है SDET। आप इंटरनेट पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, तो गाइस व्हाट इज द थिंग वी हैव, SDET पोजीशन वी हैव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इन टेक। आज की ड्यूरेशन में आपको ये ओपनिंग होती है, तो यही बंदा इसी ओपनिंग के लिए, मतलब आज के ड्यूरेशन में पीपल आर फाइंडिंग यही बंदा मैनुअल करेगा और यही बंदा ऑटोमेशन टेस्टिंग करेगा। देयर इज नो सेपरेट हायरिंग फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेशन, देयर इज नो सेपरेट हायरिंग, एक ही बंदा दोनों काम करेगा। दे मर्ज दिस पोजीशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग। सबसे पहले इसका CTC क्या होता है, तो गाइस आज के ड्यूरेशन में आपने बहुत बार सुना होगा ना कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, अच्छा उसको उसने ये एक्सपीरियंस शोकेस कर दिया, उसको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से CTC मिला। क्यों मिला गाइस, वो बिकॉज ऑफ SDET। तो गाइस अगर आपको 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है SD को, तो आराम से आपको 6 से लेके 15 के बीच में CTC मिल जाता है। ये CTC वैरी करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो रहे हो, आपने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया है, और उस प्रोजेक्ट का बजट कितना है, उन सभी के ऊपर CTC गोना वैरी। ओके, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो दिस आर द थिंग बेसिकली, और इसीलिए आज की ड्यूरेशन में SDET की क्वेश्चन होती है। तो QA टेस्टर्स ओनली परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टर ओनली परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग, बट जो आपका SDET होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, ये बंदा ये क्या करता है, यही मैनुअल करता है, यही ऑटोमेशन करता है, और इसीलिए कंपनी इज रेडी टू पे फॉर इट। ठीक है, कंपनी के पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक होता है, एक बंदे के पीछे उसको असेट्स प्रोवाइड करो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करो। मतलब अगर 2 बंदों का हायर किया तो 2 अलग अलग फैकल्टी, बहुत सारी चीजें बढ़ती है। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री इज ऑलवेज दे आर परफॉर्मिंग द स्मार्ट मूव, दे आर रेडी टू पे यू फॉर गुड CTC, ओनली दे वांट द स्किलफुल पर्सन। तो यहाँ पे जो लिस्टेड डाउन है ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। ओके, each coding is required for our automation for software testing, answer is here, but not in depth। आपको in depth coding is not required। सर क्या क्या टूल्स हम कवर करने वाले ड्यूरिंग दिस कोर्स, तो गाइस हम इंटेलिजेंट आइडिया, PostgreSQL, आपके जीरा, जावा, सेलेनियम, टेस्टिंग, Git, Jenkins, Maven, Playwright, ये सारे टूल्स हम कवर करने वाले थे during this course, guys. Okay, and this is the thing I want to tell you. This is an introduction of our software testing course. Okay, and guys, I'm opening the house for question and answer. जिन जिनको क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन, ताकि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। ओके, जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे प्लीज आस्क मी टू टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है अबाउट द नोट्स, वीडियोज, और अगर आपको फीस का कुछ भी है, प्लीज रीच आउट टू दी HR, जो भी मैंने नंबर्स आपको मेंशन किया है। ठीक है एवरीवन, दोस पीपल आर हैविंग टेक्निकल क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड।